students, today we are going to start our class 11th book, that is Hornbill, and from that book we are going to start our poem number 1, that is A Photograph, written by Shirley Tolson. We will read the poem line by line. I'll explain you the difficult word meanings, and after that we will discuss the literary devices. Now let us begin the poem. A Photograph, written by Shirley Tolson, is an interesting poem, beautiful and emotional poem that is based on an old photograph, as the title says, of the poet's mother, Shirley Tolson's mother, who is seen as a young girl in that photograph, and she was standing on the beach. The poet's mother standing on the beach with her two cousins, enjoying the holiday. The poem shows that how time changes, कैसे टाइम चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज कर देता है. हाउ टाइम चेंजेस एवरीथिंग, चाइल्डहुड, youth, beauty, everything changes with time. So we will read the poem line by line. Here is the first paragraph. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. In this paragraph, the poet is saying that the cardboard on which that photograph is pasted, वो कार्डबोर्ड मुझे क्या शो करता है, कैसे हुआ करता था वो टाइम जब वो टू गर्ल कज़न्स पैडलिंग के लिए जाया करती थी. ये टू गर्ल कज़न्स पैडलिंग के लिए जाया करती थी, और ईच वन, और दोनों ने किसका हाथ पकड़ा हुआ था, मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ था. द पोएट इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट फोटोग्राफ जो कि उसके हाथ लगी है, जो वो शर्ले टॉल्सन जो देख रही हैं, उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है. ओके कि कार्डबोर्ड, वो जिसके ऊपर फोटोग्राफ पेस्टेड है, दैट टेल्स मी दैट हाउ इट वॉज, कैसे हुआ करता था वो टाइम, दैट वो टू गर्ल कज़न्स जो पेडलिंग के लिए गई थी. पेडलिंग मीन्स यू कैन से दैट प्लेइंग इन द शेलो वाटर ऑफ द बीच, ठीक है, वॉकिंग इन द शेलो वाटर ऑफ बीच, और दोनों के दोनों ने कैसे मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ है. एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो सबसे एल्डेस्ट वन, दोनों से बड़ी, कुछ 12 years or so. The poet is saying that मेरी मदर जो कि दोनों से बड़ी है, एल्डेस्ट गर्ल, 12 years के करीब उनकी एज पोइट ने डिस्क्राइब की है. So in this paragraph, the poet tells us about that photograph in which the two girl cousins were handling the hand of the poet's mother. They were enjoying their vacation, their holiday on a beach, and her mother was around 12 years old at that time. The poet ने वो photograph देखी है अपनी mother की. Okay? Now let us come to the second paragraph. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's,
that was before I was born. In this paragraph, the poet explained all three, तीनों के तीनों खड़ी हैं, still, they stood still and they were having a smile on their faces. और उनके फेस पे स्माइल है ब्यूटीफुल सी, और उनके हेयर्स वर फ्लाइंग इन द एयर बिकॉज ऑफ द विंड. उनके बाल उड़ रहे हैं हवा में. एंड दे वर स्माइलिंग एट द अंकल हु इज़ हैविंग द कैमरा, हु इज़ क्लिकिंग देयर पिक्चर, हु इज़ टेकिंग देयर फोटोग्राफ. ओके, तो ये तीनों की तीनों खड़ी हैं. दे वर हैविंग अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन देयर फेस एंड देयर हेयर्स वर फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द विंड. एंड they stood still looking at the camera. A sweet face, the poet explained. Her mother's face was sweet because she was very young at that age. That was before I was born, because I have already told in the first stanza that her mother was around 12 years or so. That's why the poet explained this also in the second paragraph कि before I was born her mother's face was so sweet because वो बहुत young थी, है ना. तो उन्होंने बताया कैसे उनकी मदर कितनी स्वीट, उनका फेस बहुत स्वीट लग रहा था. ठीक है. सो इन दिस पैराग्राफ द पोएट एक्सप्लेन दैट हाउ दीज थ्री गर्ल्स वेंट टू द बीच फॉर अ हॉलीडे, फॉर अ ब्रेक, एंड दे वर स्माइलिंग एट द अंकल. ठीक है, कैमरा, एंड they were enjoying their holiday. Now let us come to the next paragraph. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Very, very important paragraph it is. And the sea, the poet talks about the sea, जिसमें वो enjoy कर रही थी तीनों की तीनों. वो सी जो कि टाइम के साथ बहुत कम चेंज हुआ है. वो सी क्या कर रहा है, उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर रहा है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेरिबली ट्रांजिएंट फीट? फीट मीन्स पैर उनके. ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड. See, in this paragraph the poet is saying that sea, जो कि जिस सी में वो इंजॉय कर रही हैं, वो टाइम के साथ बहुत कम चेंज हुआ है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड यू ऑल नो दैट नेचर में विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ही कम चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू अ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन बींग्स से अगर हम लोग कंपेयर करें, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आज मतलब किसी का बर्थ हुआ है तो कल जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ग्रो करेगा, एडल्ट फेज में आएगा, देन उसके बाद ओल्ड एज में आएगा, एंड लेटर ऑन डेथ उसकी हो जाएगी, है ना. बट आप देखोगे नेचर की चीज़ें बहुत कम चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो पोइट एक्सप्लेन दिस इन दिस पैराग्राफ. he tells us about he gives a contrast between the permanence of nature and temporary life of human beings. ठीक है, उसने बताया है जो सी है जो कि बहुत कम चेंज हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्या कर रहा है, वो सी उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर रहा है. टेरिबली मीन्स बहुत ज़्यादा तरीके से जो चेंज हो गए हैं फीट उनके विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर यंग, बहुत यंग थे. उसके बाद जब वो फोटोग्राफ को उसकी मदर देखती है कितने सालों के बाद, तो वो उस टाइम पे एडल्ट एज में, और यू कैन से दैट ओल्ड एज में होती है जब वो फोटोग्राफ को देखती है. तो वो जो फीट हैं उनके टाइम के साथ क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं. ठीक है, तो दैट सी जो कि बहुत कम चेंज हुआ है, व्हाट दैट सी वॉज डूइंग, दैट सी वॉज वॉशिंग देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड हियर इट इज़. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. कुछ 20-30 सालों के बाद इस फोटोग्राफ
के 20-30 सालों के बाद, यानी कि उस टाइम पे उसकी मदर की एज अराउंड 12 इयर्स थी, कुछ आप लगा के चलिए आफ्टर 30 इयर्स यू कैन से दैट द एज ऑफ इन हर 40s, जब वो इस फोटोग्राफ को देखती होगी वो क्या कहती होगी, हंसती होगी और कहती होगी, देखो बेटी एंड डोली, उसकी सॉरी 2 गर्ल कज़न्स जो थी उसकी कज़न्स को कहती होगी, क्या नाम उनका बताया, बेटी एंड डोली, देखो हम लोगों को कैसे ड्रेसअप किया जाता था जब हम लोग बीच पे जाया करती थी, तो उनकी मदर उनको कैसे ड्रेसअप करती थी। आप भी अगर आप अपने पास्ट को याद करेंगे, कई बार हम लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, अपने पास्ट में चले जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कैसे हम लोगों को रेडी करती थी हमारी मदर्स, है ना, ये कपड़े हमें पहनाती थी, ऐसे ड्रेसअप करती थी। तो कुछ 20-30 इयर्स के बाद मेरी मम्मा उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देखती होंगी और कहती होंगी, देखो बेटी एंड डोली, देखो हम लोग कैसे लग रहे हैं, हमें कैसे ड्रेसअप किया जाता था जब हम लोग बीच पे जाया करती थी। तो ठीक है, तो वो उस फोटोग्राफ को देख के बहुत अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिवाइव करती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both thrive with the laborities of loss. In this paragraph, the poet revealed कि जो सी हॉलीडे था वो उसकी मदर का पास्ट था, है ना, वो सी हॉलीडे उसकी मदर का पास्ट था, जब उसकी मदर उस फोटोग्राफ को देख के अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करती थी कि कैसे हुआ करता था वो टाइम, और मेरे लिए क्या पास्ट बन गया है मेरी मदर की वो स्माइल, वो लाफ्टर, यानी कि दिस लाइन शोज दैट हर मदर इज़ नो मोर। ठीक है, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुकी हैं। बोथ थ्राइव विद द लेबरीज ऑफ लॉस, दोनों के दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं उस लॉस से बाहर निकलने की। लेबर, हार्ड वर्क, लेबरीज मीन्स नोट डाउन आर्टिफिशियल और फोर्स्ड कंफर्ट, आर्टिफिशियल और फोर्स्ड कंफर्ट। and Rai means showing slight amusement or sadness। ठीक है, दोनों के दोनों को लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, किन दोनों को, उसकी मदर को भी और पोइट को। ओके, तो दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं उस लॉस से बाहर निकलने की, जो दोनों ने लाइफ में, जिनकी लाइफ में आया है। उसकी मम्मा के लिए क्या था वो सी हॉलीडे, और पोइट के लिए क्या, उसकी मदर का लाफ्टर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब उनको मरे हुए कितने ही साल हो गए हैं जितने कि वो मतलब जिंदा थी, जितने कि वो जी थी, यानी अराउंड 12 ईयर्स डेड हुए उनको हो चुके हैं। एंड इस सर्कमस्टांस में मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, बिकॉज एक मदर का जाना एक पर्सन की लाइफ से, उसकी लाइफ में मदर की क्या इम्पोर्टेंस होती है आप लोग समझ सकते हैं। तो शी इज सेइंग दैट देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। समटाइम्स हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपना ग्रीफ, हमारा सोरो। ठीक है, तो वही पोइट कह रहे हैं कि उनको मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, और इस सर्कमस्टांस में, इस सिचुएशन में आई हैव नथिंग टू से एट ऑल, देयर इज साइलेंस, साइलेंसेस। ठीक है, सिर्फ साइलेंस एंड साइलेंसेस, साइलेंस, साइलेंसेस, personification. With this, we are done with the beautiful poem, emotional poem written by Shirley Tolson, in which the poet describes how her mother enjoyed life when she was in her childhood stage, and after 20-30 years, when she looked at her snapshot, she revived that moment again, and
when the poet looked at the photograph, तो उसको भी सब बातें अपनी मदर की याद आ जाती हैं और बहुत सोरो और बहुत पेनफुल मोमेंट है पोइट के लिए भी जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है. नाउ let us come to the poetic devices. First poetic device is here the alliteration in the second paragraph. Stood still smile. Consonant sound S का यहाँ पे prominence है, repetition है S, S and S. तो here the poetic device alliteration is used. Again, terribly transient feet, terribly transient TT, again consonant T, alliteration. Next poetic device is oxymoron. Oxymoron. Oxymoron is a poetic device when two opposite ideas are placed together. Here it is labored ease. Labor means बहुत ही you can say that hard work, बहुत मुश्किल हो रहा है करने में. Ease means you know easy it is. तो oxymoron, these are two opposite words. Oxymoron poetic device. Next is transferred epithet, again in the terribly transient feet. What is transferred epithet? Transferred epithet is a poetic device when an adjective is transferred from a person to a thing. जब adjective ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक पर्सन से एक थिंग पे, जैसे कि फीट को हमने क्या बोल दिया, ट्रांजिएंट, है ना. ट्रांजिएंट मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी. शॉर्ट लिव्ड और टेम्परेरी तो क्या है, ह्यूमन की लाइफ है ना. यहाँ पे हमने फीट को बोल दिया टेरिबली ट्रांजिएंट. ठीक है. तो here the poetic device used is transferred epithet. And one more poetic device, irony. irony यहाँ पे यूज़ की गई है. irony क्या होता है, अपोजिट बात. जैसे कि देखिए एक तरफ हैप्पी मोमेंट दिखाया गया है उसकी मदर का, व्हेन शी लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड एन्जॉयड दैट मोमेंट अगेन. जब वो जी थी, इन्जॉय करा था उसने अपनी कज़न्स के साथ. एंड दूसरी तरफ हमें पोएट की सैडनेस दिखाई गई है बाय रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफ्टर. सो हेयर टू अपोजिट हमें क्या दिखाया गया है, मोमेंट्स को दिखाया गया है. आयरनी कटाक्ष आयरनी बताई गई है इसमें. ठीक है. अपोजिट बातें हो गई, एक तरफ हैप्पी मोमेंट और दूसरी तरफ सैडनेस. ओके. Next, if I talk about the tone of the poem, just a minute. Tone of the poem, अगर हम लोग टोन की बात करें पोम की तो नॉस्टैल्जिक, पास्ट में चले गए, पास्ट को याद कर रहे हैं. देन इमोशनल इट इज़, तो आपको पोम पढ़ के ही पता चला. मेलनकॉलिक, सैड, सोरोफुल, काम बट पेनफुल. लास्ट तक आते आते साइलेंस, लेकिन पेनफुल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पोम अ फोटोग्राफ. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.